I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our fifth lesson for Standard 3 is an interesting chapter called Animals Around Us. In this chapter, we will learn how animals are useful to us and how they are an important part of our environment. We study different kinds of animals, wild and domestic animals, their movement, food habits, and special features like tails and teeth. We also learn about herbivores, carnivores, omnivores, scavengers, and even about extinct animals. Now the next chapter is chapter 5, Animal Around Us. Do you know that animals are useful for us? They are beautiful creatures on the earth. They provide us many things. Let us study about them. हम जानते हैं कि एनिमल्स हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं. वो अलग अलग क्रीचर्स हैं हमारी अर्थ पे जो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. चलो आइए इसके आगे बात करते हैं. वी आर सराउंडेड बाई मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स कि हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स अलग अलग तरीके के kinds of animals. Animals are of different shapes and sizes. Some animals are very big in size like elephant, whale, etc. while some are small like ant and mosquito. Some animals are wild and some are domestic. हम देखते हैं अलग अलग शेप्स और साइज़ के हमारे आसपास एनिमल्स होते हैं. कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और कुछ एनिमल्स वाइल्ड होते हैं और कुछ हमारे डोमेस्टिक होते हैं. Wild animals live in the forest away from human beings. They are difficult to be tamed like lion, tiger, bear are wild animals. Wild animals होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं. ठीक है, लाइक लायन, टाइगर, बियर, ये सब हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स डॉग, काउ, हॉर्स, गोट एंड hen are kept in farms or at homes. ये सब एनिमल्स या तो फार्म्स में रखे जाते हैं या फिर घर पे. दे कैन बी टेम्ड एंड आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं क्योंकि हमें प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट एंड एग. ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ. अर्थ का सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? ब्लू व्हेल. Movement of the animals. Animals move in search of food and shelter and for protection from their enemies. Their movement are of various kinds. Some animals like dogs and deer walk. Snails slithers, birds fly, fish swim, while kangaroo hops and leaps. एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं खाने के लिए, शेल्टर के लिए या अपने दुश्मनों से बचने के लिए. ये मूवमेंट्स भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं. लाइक कुछ एनिमल्स जो होते हैं लाइक डॉग्स और डियर्स वॉक करते हैं. स्नेक जो होते हैं वो रेंगते हुए जाते हैं. बर्ड्स उड़ती है. फिश स्विम करती है. ठीक है. कैंगरूज हॉप कूदते हुए जाते हैं. फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड. एनिमल्स भी दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. एनिमल्स लाइक काउस, horses, elephants, goats, etc. eat plants and their products. They are called herbivores. हर्बीवोर्स उन एनिमल्स को बोलते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, उनको खाते हैं. एनिमल्स लाइक लायंस, क्रोकोडाइल्स ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स. दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स. कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लेश खाते हैं. Animals like bear, crow, etc. eat both plants and flesh of other animals. They are called omnivores. Omnivores वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लेश भी खाते हैं दूसरे एनिमल्स का. Animals like hyenas, vultures, etc. eat the flesh of dead animals. They are called scavengers. Scavengers वो एनिमल्स होते हैं like hyenas और vultures जो दूसरे dead animals जो मरे हुए जानवरों का flesh खाते हैं. How do animals eat? कैसे एनिमल्स खाते हैं? Herbivores have sharp and broad front teeth. To cut plants, they chew and swallow the food. Herbivores जो होते हैं उनके जो दांत होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं और उसकी हेल्प से वो आराम से swallow कर सकते हैं खाने को. Carnivores have sharp pointed and slightly curved teeth to tear the flesh. Strong grinding teeth help them to chew bones. और जो carnivores होते हैं उनके बहुत sharp और pointed teeth होते हैं जिससे वो फ्लैश को अच्छे से फाड़ देते हैं और उसको और उनकी बोन्स को भी आराम से च्यू कर लेते हैं, वो खा सकते हैं. Squirrels and rabbits nibble fruits and seeds. Butterflies suck nectar. Frogs and lizards use their long sticky tongues to get insects. Leech sucks the blood of other animals. इसमें तो बताया है कि कैसे अलग अलग एनिमल्स किस तरीके से
अपने फूड की इनटेक करते हैं। लाइक स्क्वेरल्स, रैबिट जो होते हैं वो फ्रूट्स और सीड्स को निबल कर लेते हैं। बटरफ्लाइज जो होते हैं वो सक करती है। फ्रॉग्स और लेजर्स क्या करते हैं, उनकी टंग बहुत लंबी होती है तो उससे वो इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं आराम से। और जो लीच होती है वो बिल्कुल स्किन से चिपक जाती है और वो क्या कर लेते हैं, दूसरे एनिमल्स का ब्लड को सक कर लेते हैं, चूस लेती है। सम एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज, सम इन वाटर, सम ऑन लैंड, वन सम लिव अंडर द ग्राउंड। इन्होंने बताया कि हर अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगह रहते हैं। कुछ पेड़ पे रहते हैं, कुछ ग्राउंड पे रहते हैं और कुछ लैंड पे और कुछ पानी में। एक्सटिंक्ट एनिमल्स, देयर वर सम एनिमल्स विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट मैनी ईयर्स अगो। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत साल पहले गायब हो गए थे। दे आर नॉट टू बी सीन नाउ, दे आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स। अब वो दिखाई नहीं देते, इसलिए उन्हें क्या बोलना चाहता है, एक्सटिंक्ट एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, मैमोथ, डोडो एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एक्सटिंक्ट एनिमल्स। यूज ऑफ टेल्स, एनिमल यूज देयर टेल फॉर डिफरेंट पर्पसेस। Monkeys use their tails for swinging, cats use their tails to show anger, cows and buffaloes use their tails to protect themselves from insects, dogs wag their tail when they get friendly, fishes and birds use their tail to change the डायरेक्शंस। एनिमल्स अपने टेल्स अलग अलग पर्पसेस से यूज़ करते हैं। लाइक मंकीज अपनी टेल्स यूज़ करते हैं जब उन्हें स्विंग करना है एक जगह से दूसरी जगह, जब वो चाहते हैं कूदते हैं। कैट्स यूज़ करते हैं अपना गुस्सा दिखाने के लिए। काउस एंड बफलोस यूज़ करती है अपने आप को इंसेक्ट से बचाने के लिए। डॉग्स करते हैं जब वो बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं। फिशेस और बर्ड्स यूज़ करती है अपने डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए। तो ये है वही हमारी यूजेस ऑफ टेल्स क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू। Dear students, today we have completed a lesson on animals. Please observe animals around you and talk to your family about how animals help us in our daily life. Always remember, animals are our friends and we must treat them with kindness and care. I am very proud of you all. See you tomorrow with another fun and exciting EVS lesson.